Hello, everyone, and welcome to the Daily News Analysis, which is presented to you by LawSikho. So today we'll be again discussing the important articles and editorials that we have from the Indian Express and the Hindu. So here is the list of the important topics. So there is a plethora of articles to be discussed today. They are really important for our exam. So the first one is China doubles down on claims on eastern Bhutan boundary. So this is on the very front page, very first page of the Hindu, and it is talking about that how China is now asserting even bigger claims on the Bhutan boundary as well. So we'll discuss that in detail. Then the second article is re-enfranchise the forgotten voter. So this again is a very good editorial which is from the Hindu, which talks about the voting rights and the voting the voting opportunities that should be made equally available to the migrant workers as well. Then the third one talks about the same shrinking. So this is from the Indian Express, and it has compared the situation of blacks in the United States of America to the Muslims being a minority in India. So that a very beautiful comparison has been drawn between both of them. And then on fourth number we have when bail is exception. So it is also one of the, it's a very well written article. It's an editorial from the Indian Express, and it is talking about the provisions of bail to say, and as to why is it important to grant bail in some kinds of cases, which we will be discussing in detail. And then the last one is Atmanirbhar in agriculture. So this we will be talking about now, since our Prime Minister Narendra Modi has declared that we will be making endeavors to make India to be as Atmanirbhar Bharat, that is self-reliant and self-dependent, as in it is not dependent majorly on any other country for any big resource. So in that light, it is important that we also make endeavors to make our agriculture Atmanirbhar or self-reliant as well. And I would really ask your kindly excuse me, please pardon me for the voice today, because I am not feeling a little well today, so that's why my voice might be quite grainy and hoarse. So please sail through along with me. And so with this we'll be beginning with the first article, which talks about the China-Bhutan border dispute. Now, first thing that we need to understand is that recently India and China, it was in news, and the dispute of the India-China border was also into news. India-Nepal was also into news. But if we talk about China specifically, so the China had been making severe claims on the territory even beyond the line of actual control. तो ऐसे सिनेरियो में जो इंडिया का भी जो सिचुएशन था, जिसको कह सकते हैं, या फिर एक मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशन था, वो चाइना के साथ थोड़ा सा स्टेक पे आया हुआ था ना. अभी वो प्रॉपर्ली सॉल्व भी नहीं हो पाया था. एंड नाउ व्हाट वी गेट टू नो अनदर न्यूज इज अबाउट द चाइना भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट. नाउ लेट्स सी दैट व्हाई इज इट इन न्यूज. अब ये जो हमें यहाँ पे डाई फोटो दिख रही है, इसको भी हम अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई एम स्किपिंग इट फॉर नाउ. राइट, अभी बस सिंपली ये जानना जरूरी है कि दिस इज इंडिया, दिस होल पार्ट, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ये सिक्किम है, ये नेपाल है, दिस इज भूटान, अरुणाचल प्रदेश, एंड दिस इज चाइना. सो बेसिकली हमें ये समझना है कि ये वाला पार्ट चाइना है, उससे जस्ट नीचे भूटान है. एंड टू बी नोटेड दैट भूटान इटसेल्फ आल्सो शेयर्स बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. सो इसीलिए अगर कोई भी डेवलपमेंट चाइना की या कोई भी डेवलपमेंट भूटान की, एंड दैट टू अगर भूटान के बॉर्डर्स की तरफ, वो भी इंडियन साइड के जो बॉर्डर्स उसकी तरफ कोई मेजर डेवलपमेंट होती है या कोई भी टैक्टिकल डिस्प्यूट वहां पे होता है, तो उसमें इंडिया का भी एक कह सकते हैं, इंडिया को भी अवेयर रहना जरूरी है, बिकॉज हमारी भी बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेक पे आ सकती है. So why in news? China made claims to the Sakteng wildlife sanctuary, which is in the eastern Bhutan. So here, as you can see, that the Sakteng wildlife sanctuary is in the eastern Bhutan. तो अभी इसको नोट कर लेना चाहिए, because this can be a question from prelims point of view also, because Sakteng wildlife sanctuary का अभी क्या है कि it is very much close to the border of Arunachal Pradesh and Bhutan, और इसी के ऊपर चाइना ने, अब आप सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लेम ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, इतना उसका क्लेम जिसको कह सकते हैं
ब्रॉड है कि वो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इंक्लूड कर रहा है. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट द साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज सीन रिसेंटली इन न्यूज, सो वेयर इज इट लोकेटेड. सो ऐसे कुछ क्लोज ऑप्शंस आपको दे देंगे, हो सकता है सिक्किम दे देंगे, या फिर सर्दर्न चाइना का आपको दे देंगे, या अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट दे देंगे. बट द करेक्ट आंसर वुड बी भूटान, और अगर बहुत स्पेसिफिक पूछा है तो इट वुड बी ईस्टर्न भूटान. Then in protest, Bhutan sent a demarche protesting the same. तो अब क्या हुआ था कि जब इन्होंने, चाइना ने अपने क्लेम्स यहाँ तक अब साक्तेंग वैली तक लेके गई चाइना अपने क्लेम, तो उस टाइम पे उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, या जिसको कह सकते हैं अपना एक जिसको कह सकते हैं एक अपना एक अपना एक ये दिखाने के लिए दैट वी डेफिनेटली आर नॉट okay with whatever claims you are doing. So it was made clear by Bhutan that we are sending this demand. So ये एक तरीके का कह सकते हैं एक representation होता है जिसमें कुछ officials होते हैं, वो move करते हैं and वो उसी लेवल के ऑफिशियल्स से दूसरी तरफ बात करते हैं. सो उसी के लिए उन्होंने ये डिमांड भेजा था. एंड यहाँ पे दिस इज अगेन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज चाइना, ये हमारा सिक्किम का हिस्सा है. तो सिक्किम का हिस्सा जो ये नाथुला पास है, और यहाँ पे ये हमारा डोकलाम प्लेट्यू है. तो यहाँ पे हमारा डोकलाम पड़ता है और नाथुला पास. तो पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. तो पास क्या होता है कि कोई भी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो पैसेज की जगह होती है उसको हम पास बोलते हैं. सो दिस एरिया इज वेरी क्लोज, एंड ये भी चाइना और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है. तो अगर यहाँ पे भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी, चाहे ईस्टर्न साइड पे अरुणाचल है, वेस्टर्न साइड पे अगर चाइना भूटान के लिए भी क्लेम करती है, तो इट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लोजर टू इंडिया. सो विच डेफिनेटली शुड बी seen carefully. Then in response, China strengthened its claim now on Bhutan's eastern sectors. तो अब क्या हुआ, जो डिमांड भेजा था उसकी रिस्पॉन्स में चाइना ने इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग डाउन इट्स क्लेम, उसने उसको और भी ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है. एंड नाउ उन्होंने उसके ईस्टर्न सेक्टर्स पे भी, नाउ एज वी कैन सी दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट, उसमें भी उन्होंने अपना क्लेम को स्ट्रेंथन कर दिया है. सो देन What caused the dispute? अब एक्चुअल में डिस्प्यूट हुआ क्यों था, हमें ये जानना भी जरूरी है. तो ऐसा क्या था कि कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है. सो दिस शुड बी नोटेड दैट चाइना और भूटान, वैसे तो ये काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपस में इनके हो जाते हैं कंपैरेटिवली, बट फिर भी कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके बीच में नहीं है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी डिस्कशंस होते हैं या डिस्प्यूटेबल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप एक कॉमन टेबल पे बैठ के डिस्कस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है कि आप उसमें या तो कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े, या फिर एक कह सकते हैं कि व्हेन वी से दैट पीपल आर ऑन डिफरेंट पेज, तो इसलिए उनका जो कंटेंशंस है या उनके इंटेंशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा वेरी कर जाते हैं. Then 24 rounds of boundary talks, but no bilateral talks on the eastern border between two countries. So from the period of 1984 to 2016, this is evident कि 24 rounds of boundary talks, ठीक है, तो बाउंड्री से रिलेटेड जो टॉक्स थे उसके 24 राउंड्स हुए, बट अब तक भूटान की ईस्टर्न बाउंड्री के बारे में कभी भी कोई डिस्कशन इन टॉक्स में नहीं हुआ था. सो इसीलिए कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट, क्योंकि भूटान के लिए भी ये पहली बार है दैट चाइना इज मेकिंग अ क्लेम ऑन इट्स ईस्टर्न बाउंड्री. Then, in June 2020, China attempted to stop the funding of the SWS from the UN Development Program's Global Environment Facility. तो ये हमारा जो ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके लिए जो हमारा UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका एक GEF फैसिलिटी होती है जिसको हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहते हैं. सो वो कुछ एक फंड उन्होंने प्रोवाइड किया था इसकी डेवलपमेंट के लिए, बट चाइना ने ये कह के इसको अपोज किया था, इस फंडिंग को अपोज किया था कह के कि दिस इज ऑन अ डिस्प्यूटेड एरिया. तो अगर आप फंड प्रोवाइड करोगे तो इससे अगर भाई देखो, अगर जो UNDP है वो फंड प्रोवाइड करेगी किसको, गवर्नमेंट ऑफ भूटान को, और अगर गवर्नमेंट ऑफ भूटान वहां पे उस फंड को यूज कर देगी तो ये एविडेंट हो जाएगा कि भाई इस लैंड पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे कोई डिस्प्यूट नहीं है. एंड दैट इज व्हाई इट इज इनटू वेरी मच राइट ऑफ द भूटान गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट ओवर देयर. बट यहीं पे चाइना ने अपना एक क्लेम, कॉन्ट्ररी क्लेम यहाँ पे पुट कर दिया कि इस फंडिंग को हम इससे वी आर नॉट to say we do not agree with this particular funding because this comes under the disputed area. तो इसीलिए अब ये जो है अब एक matter of dispute बना है. Now, how does it affect India now? अब इतना सब हम जान रहे हैं, so it is also important that why do we need to know this and what actually can be a consequence if China is able to move so close to the Indian borders on the side of Arunachal Pradesh. So
SWS closeness to Arunachal border. Now, two things to be kept in mind here. पहला तो कि चाइना यहाँ पे अगर आ जाता है, ऑन द ईस्टर्न साइड अगर वो आ जाता है, तो वो अरुणाचल के बहुत पास आ जाएगा. सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हमारी कोई भी बॉर्डर एक्टिविटीज हैं उस पर वो अच्छे से सर्विलेंस रख सकता है, और अगर कोई भी क्राइसिस का टाइम आता है तो इट बी वेरी इजी फॉर चाइना टू एंटर और इनफिल्टर इटसेल्फ इन द बाउंड्रीज, इन द इंडियन बाउंड्रीज फ्रॉम द साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकल डिसएडवांटेज हो सकता है. दूसरा, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है ये वाली, इट इटसेल्फ इज अ डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना. तो अगर यहाँ पे चाइना को क्लेम मिल जाता है तो एक तरीके से चाइना के लिए एक विक्टोरियस सिचुएशन हो सकती है कि कम से कम किसी तरीके से वो बाउंड्री के कुछ करीब और आ सका है. सो दैट डेफिनेटली इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया इफ दैट हैपेंस. Then Bhutan stopped the negotiations with China after the Doklam standoff between India and China in 2017. तो अब क्या हुआ था कि यहाँ पे जब हमारा ये हमने देखा कि यहाँ पे डोकलाम का जो एरिया है तो उसमें क्या हुआ था कि चाइना ने क्लेम किया था. तो जैसे अभी हमारा हम कह रहे हैं कि गलवान वैली पे स्टैंड ऑफ चल रहा था और अभी भी धीरे धीरे उसको हम ईज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही 2017 के टाइम एक सिमिलर स्टैंड ऑफ डोकलाम जो रीजन है सिक्किम में, वहां पे भी इस तरीके का स्टैंड ऑफ हुआ था. अब उस टाइम पे भूटान, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक क्लोजनेस है, तो वो इंपॉर्टेंस रखता था कि भूटान किसके साइड पे फॉल करता है, बिकॉज देन इट वुड मेक द अदर पार्टी और अदर साइड अ बिट वीकर. तो उस टाइम पे भी भूटान ने इंडिया का साथ दिया था, एंड उसकी वजह से इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जो वो नेगोशिएशन थी वो प्रॉपर हो पाई थी एंड चाइना हैड टू बैक ऑफ. तो ऐसे टाइम पे अब अगर भूटान की टेरिटरी पे क्वेश्चन है तो इंडिया की भी एक तो कह सकते हैं कि एक ये डिप्लोमेटिक ड्यूटी भी है कि इंडिया एक स्टैंड ले इसके लिए, और दूसरा उसकी खुद की मिलिट्री पर्पस के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज the brief idea about the China-Bhutan border dispute, and we should know a few points from the prelims point of view as to the location of the Sakteng Valley Wildlife Sanctuary, location of the Doklam area or the Nathula Pass which is in Sikkim. So ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. Now, this was the overall. Now I think we have already discussed, and sorry for the quality of this. It was actually one of the best diagrams that we could find, but so that is why the resolution could not be found to be very good. But since it was very clear and giving a clear idea of the wildlife sanctuary, so this photograph was chosen. So here we have discussed this is the Sakteng Valley Wildlife Sanctuary, and so Sikkim, China, Bhutan, and Arunachal Pradesh. Now, refranchising the voters. So this is the article editorial from the Hindu, which talks about the fact that now at this time, when we saw that the plight of the migrant workers, so this actually has the entire focus, or it has been talking about specifically about the rights of migrant workers to vote. So it says कि अभी रिसेंटली कोविड-19 के पैंडेमिक में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था माइग्रेंट वर्कर्स को, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा इसको कह सकते हैं प्रोएक्टिवली स्टेप्स नहीं लिए थे टाइम रहते में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए. और उसी लाइट में ये कहते हैं कि हमें ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यही माइग्रेंट वर्कर्स वो क्लास भी हैं जो वोटिंग राइट से भी इग्नोर किए जाते हैं. तो इन्होंने कहा है अभी वाई इन न्यूज, अभी क्या हुआ है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अलाउड द सीनियर सिटीजंस अबव 65 इयर्स टू वोट बाय पोस्टल बैलेट कंसिडरिंग ग्रेटर रिस्क फ्रॉम कोरोना वायरस. सो ऑब्वियसली इफ यू ट्रैवल, एंड अभी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म चल रहा है, तो ऐसे में यू आर नॉट सपोज टू ट्रैवल. एंड फर्दरमोर इट हैज बीन सीन दैट जो कोविड-19 जो ये वायरस है वो जो ओल्डर एज के जो लोग हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है, ड्यू टू ऑब्वियसली क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो रिकवर करना मुश्किल होता है. तो ऐसी सिचुएशन में अभी क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि 65 ईयर्स से ऊपर के अगर कोई सिटीजन है तो वो वोट कर सकते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट. एज इन की बैलेट जो है, यानी कि बैलेट बॉक्स जो है, जो वोटिंग सिस्टम है वो उनके पास जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उसमें टू कास्ट वोट. जबकि पहले का सिनेरियो क्या था, ओनली द डिसेबल्ड एंड दोज अबव द 80 इयर्स वर अलाउड. तो पहले ये जो क्राइटेरिया था वो खाली 80 इयर्स एंड अबव के सिटीजन के लिए था, या फिर जो डिसेबल्ड सिटीजन थे उनके लिए था. Now, so the remaining about 20 crore voters want to vote but are not able to. अब क्या होता है कि बहुत टाइम पे अब क्या है कि अब हम इसकी ही बारे में बात करेंगे कि ड्यू टू दिस some kinds of restraints जिनके बारे में अभी हम will discuss in detail, तो उनकी वजह से there are about 20 crore more voters but they cannot vote due to these social or other economic or other kinds of restraints.
Now why the migrant workers included? So क्यों हमें उनको include करना चाहिए? Why is it important for us to include migrant workers? So पहला ये कह रहे हैं कि जो migrant workers की total population है वो constitute करती है 13.9 crore total population according to the Economic Survey 2017. तो 13.9 करोड़ का जो नंबर है ये अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो इट ऑलमोस्ट फॉर्म्स 1/3 ऑफ द टोटल लेबर फोर्स इन इंडिया. तो फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग इंडिया में टोटल लेबर में काम करते हैं, देयर इन द टोटल वर्क फोर्स 100, अगर 100 लोग हैं तो उनमें से अप्रोक्सीमेटली 33 लोग जो हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं. तो अगर हम इसको आप मल्टीप्लाई करें फर्दर तो अगर सोचिए कि अगर 100 करोड़ वर्कर्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज ओनली एन एनालॉजी, इफ 100 करोड़ अगर हमारे पास टोटल वर्कफोर्स है तो उसमें से 33 करोड़ जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स की ही है. नाउ वी कैन सिंपली इमेजिन कि अगर हम इतना बड़ा नंबर, अब हम यूं देखें तो हमें एक छोटा सा नंबर दिखाई देता है, बट अगर हम इनको स्टैटिस्टिकली और अगर फिगर्स के थ्रू देखें तो हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा नंबर है माइग्रेंट वर्कर्स का इंडिया में. तो अगर हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी इग्नोर कर देंगे उनकी वोटिंग राइट से, तो हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सच में एक डेमोक्रेटिक डिसीजन या एक मेजोरिटी चोजन, मेजोरिटी का पसंद किया हुआ डिसीजन आएगा हमारी रूलिंग जो हमारी गवर्नमेंट हम चूज करेंगे या नहीं? सो ऑब्वियसली नॉट. Then travel across India. So they travel across India in search of livelihoods. So obviously that is why this is the very fact why they are called as the migrant workers. Then they are unable to exercise voting right as they cannot afford to return home. अब क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि उनको कोई पेड लीव्स तो मिलती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऐसे सिनेरियो में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एंड इट इज नॉट इवन फीजिबल फॉर देम कि वो जब उनके जो उनका होम स्टेट है वहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हो तो वहाँ पे जाके वो उस स्टेट से जहाँ पे वो एज अ लेबर काम कर रहे हैं तो वहां से वो वापस जाके अपने होम स्टेट में वोट कास्ट करें एंड देन दे कम बैक. पहली बात तो जो ट्रैवल का एक्सपेंस है वो उसको ही बियर नहीं कर पाते हैं. दूसरी बात अगर उनको छुट्टी लेनी पड़ती है तो वो अलग से उनको एक इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं एक सेटबैक उनको हो जाता है क्योंकि उनको जो उनका पैसे है या उनका डेली वेज है वो ऑब्वियसली कट कर दी जाती है. एंड फर्दर मोर उनको इतना ज्यादा वो इंटेंगल्ड है और छोटी छोटी बहुत बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में कि उनके लिए वोटिंग एक लग्जरी की तरह बन जाता है. तो ये प्रॉब्लम्स है इनको हमें टैकल करना होगा. And this is why they cannot enroll as voters in the place of employment due to non-availability of proof of residence. Now, obviously, अब जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उनका खुद का घर तो वहाँ पे होता नहीं है. एंड अक्सर क्या होता है कि वो स्लम्स में या झोपड़ियों में ये जो बहुत ही टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे जो हम टीन शेड के या इस तरह के घर बना लेते हैं तो वो वहाँ रहते हैं जिनका ऑब्वियसली कोई एड्रेस प्रूफ नहीं मिल सकता. तो इस वजह से वो क्या उस स्टेट में जहाँ पे वो एम्प्लॉयड हैं अभी एज माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे वो खुद को एनरोल नहीं करा पाते हैं एज वोटर्स. Then what is the current voting status in India? तो current voting जो situation है statistics इंडिया में वो क्या है? अभी 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें हमने बहुत सेलिब्रेट किया था कि 67.4% टोटल वोटरशिप या उसको कहते हैं वोटर टर्नआउट हुआ था amongst the 91.05 crore voters and 67.4% ने अपना वोट कास्ट किया था. Then according to the National Election Survey 10% voters refrained from voting due to lack of interest in politics. तो ये एक छोटा सा fact है. So we have discussed that 13.9 crore voters of the population, they have to travel across India in search of livelihood, and due to lack of proper address proof, they cannot get themselves enrolled. Then, so what is the current voting status in India? 2019 election में 67.4% जो voter turnout हुआ. एंड नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के इलेक्शन सर्वे के अकॉर्डिंग 10% वोटर्स जो हैं वो डिफरेंट करते हैं ड्यू टू नॉन इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. एंड आउट ऑफ 3 करोड़ NRIs ओनली 1 lakh हैव रजिस्टर्ड टू वोट. तो क्योंकि NRIs भी है they also have the right to vote. और उनके लिए क्योंकि ताकि हम उनका टर्नआउट वोटर टर्नआउट बढ़ा सकें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वोटिंग थ्रू ऑथराइज्ड प्रॉक्सीज. तो उनके लिए जो प्रॉक्सी एक वोट हो सकता है कास्ट किया जा सकता है. नाउ हियर आर द अवेलेबल मॉडल्स ऑफ वोट जिसको एक्चुअल में बेस की तरह यूज किया हुआ है इस आर्टिकल में. जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने जिस तरह और जो क्लासेस हैं हमारे सिटीजन्स की उनके लिए हमने कुछ मेथड्स या मॉडल्स डिवाइस किए हैं ताकि वो भी अपना वोट कास्ट कर सके. सारे रिस्ट्रेंट्स को चाहे वो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रेंट्स हो या किसी भी तरीके के रिस्ट्रेंट्स हो फिजिकल रिस्ट्रेंट्स हो उनको उनसे ऊपर हटके वो वोट कास्ट कर सके. उसी तरीके से हमें कोई एक मॉडल डेवलप करना चाहिए अपने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिसको वो एक्चुअल में कहते हैं कि हमें 1 नेशन 1 वोट के लिए जैसे कि हमारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम है उसी तरीके से हमें 1 नेशन 1 वोटिंग राइट के लिए वो या 1 वोट के लिए हमें फाइट करना चाहिए.
तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है ETPBS, विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो अपने होम स्टेट से हटके दूसरी जगह पे एम्प्लॉयड होते हैं, दूसरी स्टेट में एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो इस मेथड को यूज करके ETBPS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को यूज करके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑथराइज्ड प्रॉक्सीज हैं विच आर यूज्ड बाय द मिलिट्री पर्सनल। देन आधार लिंक्ड वोटर आईडी बेस्ड सोल्यूशन है विच इज टू बी मेड अवेलेबल सून, जो एक्चुअल में हमारा चल रहा है, जिसको ही हम एक्चुअल बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन वोट के बारे में। Then for migrant workers, Election Commission of India can allow migrants to vote physically in their city of work using network of district collectors। तो ये एक बेसिक आइडिया उन्होंने दिया है कि इतनी इंपॉर्टेंट जो हमारी पॉपुलेशन है, जिनकी जिसको कहते हैं मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी, तो उनकी वोटिंग राइट को या उनकी वोटिंग अपॉर्चुनिटी को हमें किसी भी तरह हैम्पर नहीं होने देना चाहिए, एंड वी शुड मेक एंडेवर्स टू गिव देम इक्वल चांस टू कास्ट देयर वोट एंड टू गिव देयर चॉइस फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट। Now, moving towards the next topic or the next editorial, which talks about the Hindu nationalism in India and white supremacism in US। तो अभी क्योंकि हमारा Black Lives Matter movement जो चल रहा है US में after the death of जो हमारा वो एक Black American जो थे जॉर्ज फ्लॉयड, जिनकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी, तो उसकी ही लाइट में और अभी उसको कंपेयर किया गया है जो हमारे इंडिया में CAA के प्रोटेस्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट हुए थे, उनको उनके बीच कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है। Now, why is it relevant now? So first, anti-CAA protests raised sentiments of India's Muslims being secondary citizens। तो क्योंकि अभी एक बहुत एक नोशन इंडिया की सिटीजन्स में, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं, उनमें आया कि we are being treated as being the secondary citizens or the less important citizens as compared to the other citizens, क्योंकि वो जब वो CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। Then black lives have treated as inferior Americans, and now इसी को अगर हम similar track पे हम US में जाएं, तो black lives को वहाँ पे भी एक तरीके से inferior Americans की तरह treat किया गया, and that is why we have currently going on the Black Lives Matter movement। Then now what are the similarities? अब हमें देखना होगा कि क्या तो similarities है इंडिया की मुस्लिम्स में, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसमें, और जो अमेरिका की ब्लैक माइनॉरिटी है उसमें, and then we'll also try to understand that what are the differences between the two। तो पहला है कि ब्लैक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 12% ऑफ US पॉपुलेशन, एंड इंडिया मुस्लिम्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 14%। तो एक तरीके से जिसको कह सकते हैं डेमोग्राफिकली जो हमारा है बेस वो काफी सेम है। सो डेमोक्रेसी इज प्रिविलेजेस नंबर्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी दोनों की डेमोक्रेसी है, उन्होंने वहाँ की मेजोरिटी को ही फेवर करा है, एंड यहाँ पे जो चाहे आप US में ब्लैक्स की बात करें या इंडिया में मुस्लिम्स की बात करें, तो एक तरीके से उनको थोड़ा सा सप्रेस किया गया है। देन व्हाइट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 73% ऑफ द US इलेक्टोरेट एंड हिंदूज कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ इंडियाज इलेक्टोरेट। तो जो भी हमारे साथ टोटल वोटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 100 वोटर्स हैं, तो वहां पे USA में 100 में से 73 जो है वो व्हाइट्स हैं, तो वो वोटर्स व्हाइट रेस के हैं, एंड इंडिया में सिमिलरली 80% या फिर 80 वोटर्स आउट ऑफ 100 जिसको मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे लें, तो वो हिंदूज हैं। तो अगर हम डेमोग्राफिकली बात करें तो वहां पे ब्लैक्स माइनॉरिटी है और यहाँ पे भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, वहां पे व्हाइट मेजॉरिटी है एंड यहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी है। Then second, like blacks, India's Muslims are mostly poor and deprived। तो similarly ऐसा नहीं है कि अगर माइनॉरिटी है तो भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड है या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उनका है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। तो सिमिलर जैसे कि ब्लैक्स भी वहाँ पे जो है वो इकोनॉमिकली वीक है, पुअर है और डिप्राइव्ड है बाकी राइट्स से जो सोसाइटी में है। सिमिलरली इंडिया में मुस्लिम्स भी जो है वो पुअर है कंपैरेटिवली, उनमें एजुकेशन का लेवल कम है और वो डिप्राइव्ड है बहुत सारी रिसोर्सेज और अपने राइट्स से। So this was the demographical similarity, and the other one was the economical similarity, या फिर इसको कह सकते हैं हम social similarity जिसको कह सकते हैं। Then जो next कहते हैं वो है what are the dissimilarities। तो इनके बीच अब difference क्या है? तो पहला, blacks were brought to US as slaves from 1619 till 1864। Social scientists compare blacks with Dalits in India। सो एक तरीके से जो कंपैरिजन है वो ब्लैक्स का, अगर हम स्लेवरी के सेंस में बात करें तो उनको अगर हम कंपेयर करना चाहें भी, तो जो USA के ब्लैक्स हैं उनको हम इंडिया में जो दलित्स की सिचुएशन थी कास्ट सिस्टम की वजह से उनसे कंपेयर कर सकते हैं। बट मुस्लिम्स जो थे दे वर नेवर फोर्स्ड इनटू स्लेवरी और अनटचेबिलिटी। तो कोई भी ऐसा केस एज इन या कोई भी सिस्टम अनटचेबिलिटी का या स्लेवरी का मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं रहा है इन दी इंडियन हिस्ट्री।
that between 11th and 18th century they ruled majority of India, and to the contrary slavery और untouchability तो बहुत दूर की बात है. Instead 11th और 18th century का जो इतना बड़ा time span था उसमें they have been the majority rulers in India. Then the Muslims are considered to Indian nation by Hindu nationalists. Then white supremacists do not consider blacks as disloyal but inferior. So please pardon, here the word disloyal has been missed. So it had to be that Muslims are considered to be disloyal to the Indian nation. तो जो Hindus का जो stance है उनका ये कहना है कि जो Muslims है वो लॉयल नहीं है एंड दे आर सेपरेटिस्ट एंड दे वांट टू गो अवे. एंड जो ऐसे अभी बहुत रिसेंटली हमें सुनने को मिलते हैं कि गो टू पाकिस्तान, इस तरह के हमारे एक नेगेटिव स्लोगन्स हमें सुनने को मिलते हैं व्हिच डेफिनेटली आर वेरी डेट्रीमेंटल ऑन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ आवर कंट्री. लेकिन मुस्लिम्स को एक तरीके से डिसलॉयल माना जाता है जबकि बिल्कुल ऐसा ये फैक्ट नहीं है. सो इट इज ओनली मिसकंस्ट्रूड. और बस क्या है, जैसे आर्टिकल में बात की गई है, उन्होंने अकबर और औरंगजेब को कंपेयर किया है या फिर जो इन्वेजन थे महमूद गजनी या गौरी के उनको कंपेयर किया है. सो अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ कर ही रहे हैं तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रूलर के या कुछ इंसिडेंसेस के बेस पे आप एक पूरी कम्युनिटी को जज या फिर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. जैसे कि औरंगजेब वो कह सकते हैं इट कैन रियली बी सेड दैट ही वाज अ वेरी, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म का रूलर था एंड उसको कोई भी और रिलीजन के लिए वो बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं था. बट ऑन द कॉन्ट्ररी अकबर इज नोन टू हैव वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर रूलर्स इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से अगर हम जनरलाइज करें तो दिस डेफिनेटली इज नॉट राइट. तो मुस्लिम्स को यहाँ पे डिसलॉयल समझा जाता है, लेकिन व्हाइट्स जो है वो ब्लैक्स को डिसलॉयल नहीं समझते, वो बट सिंपली उनको इंफीरियर समझते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन इज अबाउट द लॉयल्टी एंड हियर द क्वेश्चन इज अबाउट बीइंग केपेबल इनफ. सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड दिस the other one was according to the politics. So this has to be kept in mind. Now इसका एक रेलेवेंस हमें जानना होगा कि क्यों हमारे लिए ये कंपैरिजन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट था. हमारे एग्जाम की किस पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ सिंस अभी बहुत ही ज्यादा एंटी सीए प्रोटेस्ट हमारे न्यूज में थे एंड फर्दर अभी जो हमारा ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है यूएस में वो भी न्यूज में है, तो उसको एक कंजंक्शन बनाते हुए कोई ऐसे का क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली फ्रेम हो सकता है कि किस तरीके से सिचुएशन सिमिलर है और किस तरीके से एक सिमिलर फ्रेमवर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर किस तरह हम कुछ लर्न कर सकते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी बीइंग इन यूज इन यूएस. तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन ड्रॉइंग सिमिलैरिटी और ड्रॉइंग डिसिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द मूवमेंट्स और बोथ द सिचुएशंस कैन बी आस्क्ड इन द एसे. नाउ moving towards the next article which talks about bail during COVID-19. So अभी क्या है, ये न्यूज में क्यों है पहले हम ये जान लेते हैं. अभी रिसेंटली a 62-year-old man he died of COVID-19 in Delhi prison. तो दिल्ली का जो मंडोली में एक प्रिजन है वहां पे एक 62-year-old man था, वो प्रिजन में ही उनकी डेथ हो गई ड्यू टू COVID-19. Now one positive inmate's bail application was denied due to gravity of offense. अब क्या हुआ था कि काफी सारे, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 to 30 केसेस हमारे आ चुके हैं पॉजिटिव केसेस कोविड-19 के जेल्स में भी, दिल्ली की जेल में. तो अभी रिसेंटली ही एक और जो पॉजिटिव थे जिनको कोविड-19 था, तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया था बेल के लिए, बट क्योंकि वो जिस ऑफेंस की वजह से जेल में थे उसकी वजह से उसकी ग्रेविटी को देख के उनको बेल ग्रांट नहीं की गई. देन Supreme Court, but on the contrary, Supreme Court says that prisons are overcrowded and इसीलिए potential hotbeds for COVID-19. तो अब क्योंकि वहाँ पे social distancing आप कैसे कर लेंगे, एक सेल में 10-10, 8-8 लोग अगर होंगे तो आप किसी भी तरीके से social distancing नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए वो potential hub है, एक potential area है for the spread of COVID-19. Then इसी पर्पस के लिए हमारी हाई पावर कमिटीज बनाई गई थी जिनको हम HPCs कहते हैं. दे वर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस फॉर ग्रांटिंग बेल. तो क्या था कि क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत कम्बरसम ये प्रोसेस हो जाता है, तो जो बेल ग्रांट करनी होती थी उसमें एक्चुअल में बहुत ही जिसको कह सकते हैं एक लेथार्जिक प्रोसेस हो जाता था, और जिनको जो बेचारे डिजर्व भी करते थे बेल ग्रांट करने के लिए होने के लिए उनको भी बेल ग्रांट नहीं हो पाती थी. तो इसीलिए जो हाई पावर कमिटीज थी या फिर HPCs थी, इनको ये काम दिया गया कि जो भी इनमेट्स है उनको वो सेग्रीगेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस ऑफेंस की वजह से जेल में है या अंडर ट्रायल है, तो क्या रीजन है, और उसकी वजह से वो कैटेगराइज करेंगे उनको कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए या जिनको बेल ग्रांट करना कंपैरेटिवली इजी है या सेफ है. बट अभी जो आर्टिकल इन्होंने कहा है कि हाई पावर कमिटीज ने भी अपना काम जो है वो इतनी एफिशिएंटली नहीं किया है और उन्होंने सेग्रीगेशन जो है वो बहुत ज्यादा बायस तरीके से किया है, एंड जिनको एक्चुअली में जो डिजर्व करते थे बेल के लिए उनको वो बेल नहीं ग्रांट हो पाई है.
Then we'll discuss about Rule 24 just now. Then no relief to terminally ill, pregnant and lactating women, foreigners, elderly and disabled and under trials. तो वही जो exactly भी हमने बात करी कि हाई पावर कमिटीज का काम exactly यही था कि जो इस तरीके के लोग हैं, चाहे कोई बहुत ज्यादा बीमार है, प्रेग्नेंट वुमन है, या फिर वो अपने बेबी को फीड करती है, ऐसी वुमन है, फॉरेनर है, कोई एल्डरली या फिर डिसेबल्ड है, और अगर अंडर ट्रायल्स है, तो उनको हम एट पार ट्रीट ना करें उनके साथ जो पूरी किसी ग्रीवियस ऑफेंस के लिए जेल में है, और इसीलिए उनकी प्लाइट को या उनकी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए हमें उन्हें बेल ग्रांट करनी चाहिए. बट HPCs could not really segregate these inmates. Then What is the classification by HPCs flawed? So क्या उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से फ्लॉड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड क्यों हम कह सकते हैं फ्लॉड है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रिकमेंडेशन ने खुद कहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, दे शुड नॉट बी गिवन बेल टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ आउटसाइड प्रिजन. तो अब अगर खुद एक जो मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि प्रेग्नेंट वुमेन को दे शुड बी गिवन बेल, तो जो मिनिस्ट्री है वो खुद ये कह रही है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बेल दे देनी चाहिए, ताकि कम से कम जो चाइल्ड बर्थ है वो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज के सर्वेलेंस में ही हो. तो उसको भी, उस रिकमेंडेशन को भी ध्यान नहीं रखा है जो हमारी हाई पावर कमिटीज है उन्होंने. देन सेकेंडली, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स एडवाइजरी रिकमेंडेशन, तो उन्होंने भी सिमिलर रिकमेंडेशन दिया था कि कोई भी ऐसी वुमेन है या कोई भी लैक्टेटिंग मदर्स है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, कीपिंग इन व्यू देयर कंडीशन. Then secondly, Rule 24 of the UN rules for treatment of women prisoners, which says that instruments of restraint shall never be used on women during labor, during birth and immediately after birth. तो जो भी आप तरीके उनको रिस्ट्रेन करने के, उनको रोकने के यूज जनरली करते हो, वो आप नहीं करोगे. दे विल नेवर बी यूज अगर वो वुमेन लेबर में है, मतलब लेबर एज इन शी इज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, अगर बर्थ दे रही है या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो आप उसको भी एक तरीके से यहाँ पे वायलेट कर रहे हो. Then Section 61 of Disaster Management Act says that no discrimination in providing the relief. तो ये कहते हैं कि while providing compensation and relief to the victims of disaster, there shall be no discrimination on the ground of sex, caste, community, descent or religion. तो एक तरीके से ये provision भी हमारा यहाँ पे violate हो रहा है. Now, one thing to be noted here is that ये जो भी recommendations होती हैं या कुछ भी इस तरह के rules हैं या फिर कुछ इस तरह की factual knowledge होती है, ये हमारी tips पे हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरीके का question अगर bail से related आता है या फिर जैसे आज भी आप देखेंगे we have tried to put in a sample question from mains point of view, तो इस तरह का कोई भी हम fact के साथ question को begin कर सकते हैं, introduction में डाल सकते हैं, या फिर हमारे जो arguments हैं उनको substantiate करने के लिए use कर सकते हैं. तो ये हमें हमेशा extra points fetch करते हैं exam में. Then next, what could be the immediate solutions? So अब इसका solution क्या हो सकता है? Obviously, so treat weaker and minorities are custodial minorities. So we should be treating the weaker minorities or the weaker people or the minorities, and उनको में custodial minority की तरह treat करना चाहिए. That is why उनके लिए थोड़ा सा relaxation bail के cases में हो सकता है. Then grant moratorium on fresh arrests, remand and custody, jail as exception for under trials. तो क्या होना चाहिए कि जैसे अगर कोई भी फ्रेश अरेस्ट है, कोई रिमांड में किसी को रखा है, कस्टडी में रखा है, तो उसको एक मोरेटोरियम पीरियड यानी थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं एक एक्सटेंशन उसको दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हमारे जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है या क्रिमिनल सिस्टम जो है हमारा जस्टिस का, जेल को हमेशा एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए अंडर ट्रायल्स के लिए. जैसे कि अगर कोई है, अभी उसके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, बट अगर वो अभी अक्यूज्ड है या उसके खिलाफ केस चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बेचारा सालों बिता देता है जेल में, जबकि कभी कभी उसकी कोई गलती भी नहीं होती है, या फिर वो इतना टाइम जेल में बिता चुका है जिसके लिए वो डिजर्व ही नहीं करता था. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको मैक्सिमम अगर जेल की इम्प्रिजनमेंट का टर्म होता भी तो फॉर एग्जाम्पल 1 साल होता, बट केस चलते चलते उसने ऑलरेडी 4 साल जेल में बिता दिए. सो दिस डेफिनेटली इज वायलेटिव ऑफ हिज राइट्स. उसकी फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता है, उसकी राइट टू लाइफ को अब्रिज करता है, राइट टू इक्वालिटी को अब्रिज करता है. तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें जेल को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए. एंड बेल इज वन ऑफ द जनरल रूल्स, और अगर आप बेल ग्रांट नहीं कर रहे हो, जेल है, वो एक्सेप्शन होना चाहिए. पर अभी क्या है, रिसेंटली देखने को हमें मिल रहा है कि बेल ग्रांट होना इतना मुश्किल हो जा रहा है. जैसे अभी हमारा सफूरा जारगर का केस था, तो उसमें भी उसकी प्रेगनेंसी को ह्यूमैनिटेरियन बेस देखी बेल ग्रांट की गई, लेकिन अगेन फिर जजमेंट उन्होंने दिया, एक ऑर्डर दिया कि इसको किसी भी तरीके का प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट ना किया जाए. तो देखने को कई केसेस में ऐसा देखने मिलता है कि बेल को हम एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल रूल की तरह मान के चलते हैं, जबकि वो अंडर ट्रायल है. तो उनके लिए एटलीस्ट बेल जो है वो एक जनरल थिंग होनी चाहिए और जेल एक एक्सेप्शन होना चाहिए.
So then this was all for this article. Then now we'll be discussing about Atmanirbhar Bharat in agriculture. So why is it in news? So PM Modi has called for Atmanirbhar Bharat and be local for vocal. तो अभी recently क्योंकि हमारे बहुत disputes भी चल रहे हैं चाइना के साथ में और अभी नेपाल के साथ में हमारे border dispute हो गया पाकिस्तान के साथ, तो we have almost always some of the other kind of dispute. और COVID-19 के time पे भी क्योंकि जिन countries से हम import कर रहे थे बहुत सारी चीजों का, तो वो भी काफी ज्यादा hamper हुआ है due to the pandemic. तो ऐसी एक सिचुएशन में से सिनेरियो में ये जरूरत हमें देखी गई है कि इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना चाहिए हमें. So this is we will discuss about this in detail. Now it includes आत्मनिर्भर in agriculture sector. तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि हमें अगर सच में आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जब तक आपके हाथ में है तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो. अब फॉर एग्जांपल सोचिए कि अगर हमारी किसी कंट्री के साथ में वॉर है या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे बॉर्डर्स हम प्रॉपर वहां पे फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी सी रूट पे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, कोई ब्लॉकेज हमारे किसी एडवर्सरी ने कर दिया है, तो अगर हम किसी कंट्री पे मेजरली डिपेंड कर रहे थे फूड ग्रेन्स के लिए भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी, तो सोचिए कि हमारा देश खाएगा क्या. ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम सेल्फ रिलायंट है, कम से कम हम अपने आप का जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो अपने आप पूरा कर सकते हैं, तो तब हम काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं किसी एडवर्स केस में भी. सो देन व्हाट इज द करंट एग्रीकल्चर ट्रेड स्टेटस? तो एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मरीन एक्सपोर्ट जो है इंडिया के $6.7 बिलियन के होते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी ह्यूज. देन राइस की अप्रोक्सीमेटली $6.4 बिलियन की एक्सपोर्ट हम करते हैं, विच इज फॉलोड बाय स्पाइसेस, बफेलो मीट, शुगर विच अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूट्स टू $2 बिलियन ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट, टी एंड कॉफी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कॉटन. तो अभी इन्होंने जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा सबसे मेजर जो इंपोर्ट है वो एडिबल ऑयल का है, एंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू अबाउट $10 बिलियन. तो ये बहुत ही ह्यूज जिसको कह सकते हैं एक शेयर है इंपोर्ट का. तो कह सकते हैं कि हम एडिबल ऑयल के लिए जो हम जिसपे हम इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे सो दिस इज द एरिया जहाँ पे हम आत्मनिर्भर भारत को एक्चुअल में हमें यहाँ पे फंक्शनैलिटी में लाना होगा, एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे हमें सेल्फ रिलायंस की जरूरत है. एंड दीज आर द एरियाज जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हैं, तो इनको हम कॉम्पिटिटिवली यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट, for further development in our export surplus. Then edible oil, इस पे हमें काम करना चाहिए. Then further how to become आत्मनिर्भर. Now एक comparative advantage की बात की है कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं. So पहले राइस एंड शुगर की अगर हम बात करें तो कल्टीवेशन आर हाईली सब्सिडाइज्ड, फ्री पावर एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स. तो क्या है कि राइस एंड शुगर की जो कल्टीवेशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली जो टोटल प्राइस या टोटल पैसा उसमें लगता है उसमें से 15% के आसपास तो सब्सिडी के थ्रू कट हो जाता है. तो इसलिए क्या होता है कि इजी हो जाता है फार्मर्स के लिए उसको कल्टीवेट करना. तो इसी तरीके से कहते हैं कि और जो चीजें हैं जिसमें हम और भी अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, स्पाइसेस एक्सेट्रा, तो इसमें भी हमें जो सब्सिडी है गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए ताकि इंसेंटिवाइज हो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इनको ग्रो करने के लिए और हम इनको और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर सके इन दी ग्लोबल मार्केट. देन This leads to virtual export of water. तो एक तरीके से कह रहे हैं क्योंकि 1 kg राइस को हमें कह सकते हैं सींचने में 3500 to 5000 लीटर्स के का पानी लगता है, और 1 kg शुगर के लिए अप्रोक्सीमेटली 2000 लीटर्स. ना इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितना वर्थ है ये या कितना नहीं. तो इसमें क्या होता है एक तरीके से हम जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा दूसरा रिसोर्स है पानी, उसको भी हम इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं बाहर, और जो खुद एक स्कार्स रिसोर्स है अभी, एंड वी शुड वर्क ऑन कंजर्विंग द वाटर. तो हमें ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस पे काम करना चाहिए जो कम पानी या कम फर्टिलाइजर, कम यूरिया या इन तरह की कम इनपुट्स को यूज करके ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड कर सके. Then 75% of nitrogen in urea is not absorbed by plants and evaporates into environment, leaches into groundwater. तो क्योंकि हम जैसे अगर यूरिया के थ्रू उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते भी हैं तो उसमें से 75% तो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, या तो वो हमारे इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाता है या फिर वो ग्राउंड वाटर में लीच डाउन हो जाता है. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा कंजर्वेशनल प्रोसेस यहाँ पे यूज करें. देन इसीलिए कह रहे हैं कि सिमिलर सब्सिडीज, जो ये वाली सब्सिडीज हैं, यही हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, कैन बी गिवन टू अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज वेल. एंड एडिबल ऑयल के लिए, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं दूसरी जिसको कह सकते हैं कंट्रीज के ऊपर, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए. इसके लिए हमें लो इंपोर्ट ड्यूटीज उन पे लगानी चाहिए. एंड दूसरा, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो हमें खुद इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम खुद इस तरह का प्रोडक्शन करें ताकि हम भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकें.
then we should start domestic palm cultivation, because obviously palm oil का यहाँ पे काफी ज़्यादा जिसको कह सकते हैं एक potential है, but जिसमें हमें थोड़ा सा work करना पड़ेगा, but it is fetchable, उसको हम it is feasible, it is achievable, तो हमें वो करना चाहिए. तो ये हमारा जिसको कह सकते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आत्मनिर्भर भारत क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं. नाउ दिस आल्सो कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, wherein the question can be framed like something like that, keeping in mind the Atmanirbhar Bharat, which has recently been promoted with great hue and cry. So how and how much is it important for our country to become self-reliant in the sector of agriculture, and if so, how can this be achieved? So इस तरह का कोई भी question हमारे frame हो सकता है. So ये actually हमारे import export के बारे में ये बात करते हैं. So ये actually हमने यहाँ पे basically discuss कर लिया, उसी का एक cryptographical ये बार representation है. So with this, we come to the end of today's DNA. It was quite exhaustive and lengthy daily news analysis for the day. But yes, very important topics have been discussed. So this question is from the prelims point of view. Electronically transmitted postal ballot system is used by whom to cast a vote from any area other than their registered address? So first is government employees, second military officers, third migrant workers, or fourth NRIs. And since, as we said, that now we'll be venturing into one mains sample question as well, where a question from the mains point of view. So this question for today is, keeping in mind the current scenario of criminal justice system in India, it can be said that bail has become more of a general rule, rather being an exception for the under trials. So discuss the above statement in the light of recent cases related to grant or denial to grant of bail. Now, we would highly appreciate if all the viewers here can write down their answers in the comment section below. We will definitely make efforts, and we will definitely try to review each of your answers, and if currently we would not be able to due to any unforeseeable circumstance, so it is still a very great opportunity for you all to get into a peer review wherein you yourself can review each other's answers and can get a good idea of answer writing. So this can definitely make your skills of articulation and answer writing grow even better. So with this, we'll be ending today's session, and thank you so much for keeping in touch with us. Stay tuned with LawSikho for further more updates. Thank you.